Hello all. Good afternoon, HSS. Welcome in this Maa Kumbh Pranam, a special learning series on HSS platform. It's 13th day today. Let's welcome today's speaker, Dr. Ujjwala Gulwani ma'am. It's my pleasure to introduce her shortly. She's consulting homeopath at Badlapur and Pune. She's practicing homeopathy since last 25 years. After completing MD from Bede, ma'am worked as a registrar at Nehru Homeo Medical College, NCT of Delhi from 2001 to 2004. She was also associate professor at AKHNC, Alefata Homeopathic Medical College, for 3 years in medicine department. She is also assisting her father in his rehabilitation center and also in his literature work. That's great news for all of us. We are delighted to welcome you, ma'am, as speaker for today, and we all are excited to learn from you, ma'am. The stage is all yours now. Please continue, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you very much. It is a case of a 12 years young boy who has presented with the eruptions on the elbow and the knee and on the back, and he was under the allopathic treatment for 2.5 years without any good results. And some of my patient, he was a relative of that patient and he recommended the patient to me. So when he came for the first time, he accompanied his mother, and as he entered, he sat onto the examination table, and mother was sitting in front of me. So he just avoided me sitting in front of me also, and he just sat on the examination table, which is on the right side. So it's not making like he must be, I don't know, but my observation was he just was avoiding me directly. So his presenting complaint was exfoliating eruptions, itching, which was aggravated by scratching. All of you have gone through the descriptions. The major thing which I want to point it out was in the history, the past history, as he was one of the twin child, and comparing the both milestones of the both of the children's, mother said that as compared to my daughter, he started talking late. I'm audible, na? Hello? Yes, ma'am. Yes, perfect. Yeah. So he started, he just was monosyllabus for many, up to 3 years. He was just talking mama, papa, बाबा, कक्का, दे ऐसे, और फिर दो वर्ड ही बोल रहा था अच्छे से, जैसे कंपैरेटिवली वो लड़की जो है वो अच्छे से बात करती थी पूरा सेंटेंस में. तो ये एक मुझे पास हिस्ट्री में मिला. अदरवाइज उसको छोटा था तभी से रिकरेंटली कोल्ड कफ ये होता ही रहता था. उसके कंपैरिजन में इसको ही फैमिली हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है. सिर्फ इसके फादर जो फादर के इसके ग्रैंडफादर है वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी. फिजिकल जनरल्स में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एपेटाइट वॉज गुड. मेरा लग अच्छा है मतलब क्या है, बोलती है अच्छे से खाता है, उसको खाने की मुझे कोई परेशानी नहीं है. मेरे लड़की के बहुत नखरे, इसके कोई नखरे नहीं है. वो सब कुछ खा लेता है, मांग के खाता है, लेकिन उसको नॉनवेज ज्यादा पसंद है. उसमें भी चिकन, फिश और ये ज्यादा पसंद है. और रोज 10 रुपए मांग के लेके जाता है कि मुझे चिप्स खाने हैं. और बाहर से पिज्जा वगैरह भी उसको बहुत पसंद है. तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर अच्छे से खाता है तो अच्छे से खा रहा है तो इतना हेल्दी दिख नहीं रहा था, लीन थीन ही दिख रहा था उसका कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा जो मदर से ही हिस्ट्री आया है कि वो इस चीज के बारे, जब से ये उसको बीमारी हुई है, स्किन की प्रॉब्लम हुई है, तब से वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है. जैसे स्कूल में अभी स्कूल का यूनिफॉर्म तो यहाँ पे होता है ना, हाफ शर्ट जैसा होता है. तो हाफ शर्ट पहनने से उसके लीजन्स, हाथ के लीजन्स दिखते थे. पैर में तो फुल पैंट होती थी, लेकिन हाथ के लीजन्स उसके दिखते थे. और उसके स्कूल के फ्रेंड उसको
कभी ना कभी कोई ना कोई हर एक दिन में पूछता था, तो उसको वो थोड़ा ज्यादा उससे शर्मिंदगी महसूस होती थी। और इसीलिए वो स्कूल में ज्यादा घुल मिलता नहीं था, बस उसके घर के पास में जो उसके बहुत नियर फ्रेंड थे उसी के साथ में वो ज्यादा मिलना और खेलना पसंद करता है। बहन के साथ में इतनी मिलती नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से ही वो थोड़ा सा कंपैरिजन शायद उसको उसके मन में है, और जैसे हर सिबलिंग्स के मन में होता ही है कि मैं मम्मी मेरे से ज्यादा उससे प्यार करती है, और वही हिसाब से उसको लगता था कि ये इसको ज्यादा सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ी सी वो पढ़ाई में भी उससे अच्छी है, वो थोड़ा उसमें है। तो जब ये मम्मी बता रही थी तो ही वॉज लुकिंग स्टेयरिंग एट मदर, एंड मम्मी ने ये बोला कि उसके साथ में वो ज्यादा घर में ही खेलता है, तो हमेशा तू तू मैं कर हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मोबाइल को लेके झगड़ा हो जाता है या कोई चीज को लेके उनसे दोनों में झगड़ा हो जाता है, इसीलिए वो अलग अलग ही खेलते हैं। और कहीं बाहर जाना है उसके साथ में, कहीं भेजना है, स्कूल में भी साथ में जाना है, तो वो उसके साथ में नहीं जाता, वो आगे जाती है, फिर वो पीछे से साइकिल पे वगैरह चला जाता है। और कहीं बाहर जाना है तो वो मम्मी अगर कहीं पे जहां पे जाना है वहां पे मम्मी अगर होगी साथ में तो ही वो जाता है, अदरवाइज वो कहीं पे जाना अवॉइड करता है। तो मैंने पूछा ये इसका मतलब क्या है कि क्यों क्यों नहीं जाना चाहता है, तो उसने बोला कि सब लोग क्या होता है, अगर वो सिस्टर के साथ जाएगा, कोई बोलेगा पूछता है लीजेंस के बारे में, तो वो सिस्टर उसको कवर नहीं कर पाती है, कुछ बोल नहीं पाती, जैसे कि मदर कुछ बोलती है या कोई दवाई के बारे में बोलेंगे या कोई क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इसके बारे में, तो सिस्टर तो बता नहीं पाती है, तो मम्मी बता पाती है, तो उस वो अवॉइड कर सकता है लोगों को और मम्मी को आगे करके। तो मम्मी ही बात करती है, वो बात नहीं करता है, ये इसमें ये है। और बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली ये चीज अवॉइड करने के लिए वो फुल शर्ट और पैंट पहनने की कोशिश करता है हमेशा। तो ये सब था। और हाँ, दूसरा ये है कि घर में जैसे उसके घर में दादी भी है और चाचा चाची है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहते, सैटरडे संडे आते हैं और कई जगह पे रहते हैं। और मम्मी पापा और ये दोनों बेटे हैं, मतलब भाई बहन है। तो घर में तो वो कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि उनको पता ही है कि इसको ये लीजेंस है। लेकिन कहीं ये बाहर से कोई चीज के किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसके ऊपर अगर इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की या कंसोल करने की कोशिश की, जैसे कोई और रिलेटिव आता है या आसपास के जान पहचान के लोग आते हैं, तो उसको रोना आ जाता है, और समझाने से बात करने से वो और ज्यादा रोने लगता है। तो ये सब चीजें तो हमने देखी है, और आपने फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। तो रेमेडी के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सही ट्रैक पे मुझे लगता है कि रेमेडी पकड़ी है। तो मेरा मैंने जो टोटलिटी ली थी इसमें, मैंने एक जो रूब्रिक लिया है वो एलिमेंट्स फॉर एम्बरेसमेंट, ये शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया है। इसको लगता है कि जो मेरे लीजन्स है वो हाइडिंग है, हाइडिंग तो सही है, हाइडिंग अगर बहुत लोगों ने लिया है, हाइडिंग तो है ही, लेकिन हाइड क्यों करना चाहता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उसको वो लगता है कि ये मुझसे, मतलब ये दिखाने से मुझे थोड़ा सा कुछ अलग महसूस होता है, एम्बेरसमेंट महसूस होती है, ये उसके पीछे का रूब्रिक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और एनिमल लविंग, कंसोलेशन एग्रेवेट्स या सिंपैथी एग्रेवेट्स, और लोगों में जाने का डर है क्योंकि रिजेक्शन का डर रहता है, ये है। जेलसी तो साफ साफ है ही, बच्चों के बीच में, दोनों के बीच में उसको लगती है ज्यादा, क्योंकि उसको ज्यादा सिस्टर को अप्रिशिएट किया जाता है, तो ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली है। और वीपिंग, कंसोल करने के लिए जाओ, समझाने के लिए जाओ, तो वो वीपिंग है। और रिजर्व है क्योंकि उसके कंपैरेटिवली बहुत सारे दोस्त नहीं है, कम ही दोस्त है जिनके साथ वो घुल मिल जाता है, और उन्हीं के साथ में वो खेलना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सही रेमेडी को पकड़ा है। टुडे आज का जो मेरा विषय है वो सिर्फ रेमेडी सिलेक्ट करना वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी
प्रैक्टिशनर्स है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, माइंड मेथड पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो रेमेडी निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट बात थी नहीं इस केस में। सिर्फ डिफ्रेंसिएशन का मैं दो चार चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में मैं मेरा ये डाल देती हूँ आपको, जो मैंने रूब्रिक्स लिए हैं, फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सर आप डालोगे क्या, मैंने आपको भेजा था। मैं डाल दे रहा हूँ जी, आप बोल दीजिए। हाँ हाँ, तो ये जो मैंने रूब्रिक्स लिए थे, तो उसका जो रेपर्टरी एनालिसिस है वो अभी सर डाल रहे हैं। तो जो मैंने लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट और एनिमल लव केयर, ये तो सबने लिया है। और ये लेकिन वो है कि एनिमल्स के लिए जो लव और केयर है वो उसका सिंपैथेटिक नेचर है। जैसे एक ने अच्छी तरह से एक डॉक्टर ने पॉइंट आउट किया है कि उसको लगता है कि एनिमल्स वो इंसान से ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो बोलते नहीं है कुछ, और उसको जज नहीं करते हैं। तो वो एक अच्छा पॉइंट एक ने डिस्कस किया है। तो एनिमल के तरफ उसका लगाव ज्यादा है, और एक ही उनके बिल्डिंग के नीचे एक बच्चे हैं 3-4, तो वो हमेशा बस उनसे जाके खेलता है, उनको केयर करता है, घर से उनको रोटी वगैरह लेके जाके खिलाता है, या कभी चिकन बनाए तो वो भी जाके खिलाता है। लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन अगर हम दूसरा रेमेडी का करते हैं, जो एनिमल सिंपैथी, एनिमल लव का जो और भी रूब्रिक्स है ना, और भी रेमेडीज में कवर होता है। जैसे किसी ने लिखा है यहाँ पे पल्सिटिला भी लिखा है, या इग्नेशिया भी आया है। तो इग्नेशिया से डिफरेंशिएशन ये है इसका कि इग्नेशिया जो होता है वो सेंसिटिव होता है सफरिंग की तरफ एनिमल्स के, और वो उनको हेल्प करना चाहता है, यही एक डिफरेंस है। बाकी दोनों में एनिमल लव है, लेकिन लव सिर्फ होना और सिंपैथी सिर्फ होना वो नहीं है। इग्नेशिया उससे भी आगे जाके उनको सफरिंग में, जैसे उनको वो बीमार है, कुछ उनको तकलीफ हो रही है, तो वो जाके उनकी केयर करता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट में एम्ब्राग्रेसिया, बराइटा, ओपियम, नैट्रम, इग्नेशिया, सल्फर, ये सभी रेमेडीज हाई पॉइंट पे थी नंबर 2 पे। कंसोलेशन एग्रेवेट्स और सिंपैथी एग्रेवेट्स में भी इग्नेशिया है, नैट्रम है, सेपिया है। ये मैं डिफरेंशिएशन इसलिए दे रही हूँ ताकि सब लोगों को इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया है वो भी समझ में आ जाए। सल्फर भी इसमें है। माइंड फियर ऑफ रिजेक्शन, इसमें भी इग्नेशिया, नैट्रम, स्टैफ है। जेलेसी चिल्ड्रन बिटवीन, इसमें भी नैट्रम और सल्फर, सेपिया है। वीपिंग कंसोलेशन में इग्नेशिया, नैट्रम, सेपिया, सल्फर। माइंड रिजर्व में नैट्रम, फॉस्फोरस, इग्नेशिया। तो यहाँ पे ये सब रेमेडीज पैरेलल जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इग्नेशिया तो वेजिटेबल एनालॉग है नैट्रमबुर का। स्टैफ भी बहुत क्लोज जाती है इसके। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि रेमेडी अगर 3-4 जा रही है तो इसमें हमको पकड़ना क्या है। तो इसमें मैंने जो पकड़ा है वो फिजिकल असर्टेनेबल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसका जो फिजिकल जनरल है, उसकी जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंसीडर करके हमको टोटलिटी निकालनी है, तभी हम सही मेडिसिन पे पहुंच पाएंगे। तो इसमें मेन चीज जो हमने ऑर्गेनन में सीखी है वो हमको ध्यान में रखनी है। सिर्फ सॉरी अगर मैं आपको थोड़ा ऑर्गेनन की तरफ ले जाऊं, प्लीज कंटिन्यू मैडम, वो इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यू। तो क्योंकि मैं मेरा सब्जेक्ट ही ऑर्गेनॉन था पर पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड आई एम एमडी ऑर्गेनॉन, तो थोड़ा मैं बेस उसका थोड़ा मैं बता दूं जो मेरा अप्रोच था। कि जैसे हमने फर्स्ट 5 to 6 एफोरिज्म्स में जो पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक पढ़ा है, लेकिन वही हम भूल जाते हैं कि पहले एफोरिज्म में तो सिंपल है कि रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म, लेकिन वो कैसे करना है, तो रैपिड, जेंटल एंड मोस्ट हार्मलेस वे, और इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ये रहता है कि जो हमको सहज समझ में आने वाले तत्व,
कोई ऐसे तत्व नहीं कॉम्प्लिकेटेड जो हमको समझ में ही ना आए। हाँ, कोई हाई फाइल है कि जैसे कि हाइपोथेसिस हो, स्पेकुलेशंस हो, ऐसे नहीं, जो ऐसे होने चाहिए जो फैक्ट्स हो, और फैक्ट्स है वो सबको दिखने में आ जाए और सब उसको एक्सेप्ट कर ले। तो जैसे नॉलेज ऑफ डिसीज इंपॉर्टेंट है, वैसे नॉलेज ऑफ मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट है। और हमको इस रेमेडी जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी, तो हमको वो उसमें क्या क्यूरेबल है, मेडिसिन में क्या क्यूरेबल है, वो हमको परसीव करना है। और सिर्फ रेमेडी सिलेक्शन तक हमारा जॉब खत्म नहीं होता है, उसके आगे भी हमारा कि हम लोग सही पोटेंसी सिलेक्ट करें और सही रिपीटेशन में दें। अभी इस केस में आप सभी को, जैसे मैंने अभी बताया कि नेट्रमूर रेमेडी विच आई टू, एंड रेमेडी भी सही निकाली और रेमेडी प्रिस्क्राइब भी की, लेकिन उसके बाद में जो मैंने डिस्कस किया है वो अभी आप सुनो के पहले तो मैंने नेट्रमूर 200 दिया, ठीक है, और 15 दिन के लिए वेट किया। फिर उसको 15 दिन के बाद बुलाया, 15 दिन में थोड़ा सा उसका इचिंग में कुछ फर्क हुआ। देन आई रिपीटेड द सेम पोटेंसी एंड अगेन सेंड बैक द पेशेंट। उसके बाद में फिर से उसको बुलाया 15 दिन में, फिर मैंने 1M दिया। तो इसमें 1-2 महीना निकल गया। दो द पेशेंट वॉज बेटर, उसके जो लीजन्स है वो ग्रो नहीं हो रहे थे, ड्राई हो रहे थे, इचिंग भी कम हो रहा था, तभी जो फास्ट रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो व्हाट वाज अ प्रॉब्लम, तो मैंने फिर से केस रिव्यू किया। द रेमेडी वॉज करेक्ट, आई डोंट वांट टू, मतलब मुझे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे रेमेडी तो चेंज नहीं करनी है क्योंकि ये सही रेमेडी है, अदरवाइज इतना रिजल्ट नहीं मिलता था। तो उसी टाइम मैंने मेरा जो है ट्रेनिंग कैंप के लिए मैं गई थी आगरा, नेमिनाथ हॉस्पिटल, और वहाँ पे मैंने सर को देखा कि सर वहाँ पे इतने सारे केसेस ट्रीट करते हैं, डॉक्टर गुप्ता सर, और वहाँ पे केसेस ट्रीट करते समय मैंने देखा कि यहाँ वहाँ पे वो 50 मिलीसिवल पोटेंसी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे, और दैट टू इन रिपीटेशन, इवन इन सिफिलिस, सिफिलिनम, tuberculinum, all that remedies he was using very frequently in repetition। तो हम लोग सोचते ना, अरे ये इंटरकरेंट रेमेडी है, ये नोजोड है, इसको कैसे हम रिपीट करें। तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे हमारे दिमाग में चल रहे थे। लेकिन वहां पे जैसे ही हम लोग गए और हमने इतने सारे केसेस दिए, तो वहां पे जाने के बाद में हमने देखा कि बहुत अच्छे से सर वहां पे उस हॉस्पिटल में एलएम पोटेंसी वो वाटर डोज में यूज कर रहे थे, और सेंटीसिमल डेसिमल पोटेंसी भी वो लोग वाटर डोज में यूज कर रहे थे। मतलब जो हमने सेकंड एफोरिज्म में जो हमने पढ़ा है कि रैपिड, जेंटल, ऑन मोस्ट हार्मलेस वे, तो ओवर रिपीटेशन नहीं है, मिनिमम, और जो मिनिमम डोज, सिंगल मिनिमम जो हमने पढ़ा है वो प्रिंसिपल वो फॉलो कर रहे थे। एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट। और हम लोग जैसे ही 7-8 दिन वहां पे थे, तो नॉट ओनली अदर केसेस, लेकिन कैंसर केसेस में भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा। तो वहां पे सर भी यही चीज पे फोकस करते हैं कि आप जो भी देखो, जो भी केस में आपको देखना है, वो क्या देखना है कि जो आप असर्टेनेबल कॉन्स्टिट्यूशन, असर्टेनेबल टोटलिटी जो पेशेंट की होती है वो देखो। जो पेशेंट में दिख रहा है वो पहले समझ लो आंखों से, और उसके बाद में फिर आपको जो पढ़ा है उसके ऊपर आपको कोरिलेशन जो बनाना है वो बाद में बनाओ। लेकिन पहले आपको ये करना है कि आपने जो सीखा है वो पहले आपको समझना है। तो परसीविंग द रेमेडी एंड परसीविंग द डिजीज ऑल्सो। डिजीज आपको परसीव किया, डिजीज, सफरिंग पर्सन, उसको भी आपको परसीव करना है। तो यहां तक तो हम लोग आ गए कि हमने सही रेमेडी पकड़ी है। तो वहां से आने के बाद में जैसे ही मैं पेशेंट का फॉलोअप आया था, तो मैंने उस पेशेंट को नेट्रमूर 0/1 पे शिफ्ट किया। वहां तक तो मैं 1M तक ही दिया था मैंने, और नेट्रमूर 0/1 मैंने पहले दिया एवरी 5 मिनट्स
5 ml। फिर उसके बाद में 15-20 मिनट पेशेंट को बिठा के रखा था और फिर उसको बोला कि घर जाके उसको 10 मिनट्स में लेना है और दूसरे दिन से उसको TDS ये लेने के लिए बोला था इन वाटर डोज। और मैंने बोला कि ये 2 वीक्स तक जाएगा, 2 बॉटल दिया है और फिर 2 वीक्स के बाद आके मुझे बताओ। तो 2 वीक्स के बाद तो पेशेंट आया ही नहीं। आई वॉज वरीड कि पेशेंट क्यों नहीं आया। 1 महीना होने को आया, फिर मैंने उनको कॉल किया कि क्यों नहीं आए, तो वो कुछ त्योहार था, दशहरा हो गया था, तो वो लोग गाँव निकल गए थे। उसके बाद में बोले कि नहीं हम लोग गाँव में है तो अगले हफ्ते आ जाएंगे। तो उसके बाद भी वो 2 वीक्स के बाद आए, मतलब 1.5 मंथ्स के बाद वो आए। और जब मैंने देखा, मैंने पूछा था उसको कि कैसा है, तो बोलती हाँ अभी तो ठीक है, पहले से ठीक है, इतना ही उसने बताया। फिर जब आए तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी द रिजल्ट। उसके लीजन्स जो है, जो शायद सर ने फोटो भी पोस्ट किया है, जो 3-4 मंथ्स के बाद में जैसे मैंने LM पोटेंसी पे शिफ्ट किया तो उसके जो लीजन्स थे वो काफी हद तक कम हो गए और क्लीन हो गया था। और वहां पे उसने बोला कि पहले तो जो ये वाले तो थे वो तो कम हो गए लेकिन नए आए। मैंने बोला नए कहाँ पे आए, तो उसने बोला कि नए मतलब ये पहले भी थे लेकिन ये अभी फिर से आ गए। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन उनको दिया था उसके बाद में जो सप्रेस हो गया था शायद, तो वही रिकर हो गया। कान के पीछे आया था और पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच में आया था, वो भी आ गया था। तो फिर से मैंने नैट्रमूर मेडिसिन पोटेंसी चेंज नहीं किया, नैट्रमूर 0/1 ही उसको 2 वीक्स के लिए दिया और उसके बाद में SL लेने के लिए बोला और फिर अगेन नेक्स्ट 1 मंथ के बाद बुलाया था। तो ग्रेजुअली जो पुराने वाले जो लीजन्स थे वो रीअपियर होके डिसअपियर हो गए विदाउट एनी मच एग्रेवेशन। तो ये इफेक्ट मुझे लगा कि अगर मैं अगर इनको 1M या 10M पे जाती तो शायद हो सकता था कि एग्रेवेशन हो जाए। लेकिन अगर मैं 0/1 पोटेंसी में दे रही, जैसे 50 मिलीसीमल में दे रही हूँ और वाटर डोज दे रही हूँ, तो एग्रेवेशन बाहर निकला भी है तो इट वाज स्मूथ काइंड एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द पेशेंट। तो हार्मलेस वे से ये वो पूरा निकल रहा है। तो अभी जो रिसेंट मतलब लास्ट इस मंथ के फर्स्ट वीक में पेशेंट आके गया है, उस टाइम के भी फोटोग्राफ्स मैंने भेजे। अभी सिर्फ 2 ही डॉट्स एक पैर में उसका, वो भी गया और फिर से आ गया था। तो वो भी उसने बताया कि यहाँ पे भी पहले भी था, अभी ये फिर से आ गया है। तो वो और हाथ में बस इतना ही उसके लीजन अभी बचे हैं। और अभी मैंने उसको नैट्रमूर 0/3 डेली 1 सिंगल डोज दे रही हूँ। तो यहाँ पे लर्निंग मेरे हिसाब से ज्यादा ये था कि हमको लेना क्या है कि अगर हम कोई भी रेमेडी सिलेक्ट करते हैं तो उसके पोटेंसी पे भी हमको ध्यान देना है। पहले तो हम लोग क्लासिकली वही करते थे कि पोटेंसी सिलेक्शन में हम लोग एज, उसका पेशेंट की कंसिडर करते कि उसका रिएक्शन कैसा है, बॉडी रिएक्शन कैसा है, ये सब अब कंसिडर करते हैं। डेप्थ पेशेंट का, क्रॉनिसिटी डिजीज का, एक्यूट है या क्रॉनिक, वो भी सब कंसिडर करते थे। लेकिन फिर भी कहीं कभार हम लोग ये डरते थे कि अगर हम हायर पोटेंसी में इमीडिएटली जाए या ना जाए, ये डर रहता था कि हम लोग शुरू करते थे कि हाँ पहले 200 दे, फिर 1M दे, फिर धीरे धीरे आगे करें। लेकिन LM पोटेंसी का जो जहाँ पे डॉक्टर हालेमन ने पहले भी डिस्कस किया था, 5th एडिशन में ज्यादातर ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम 50 मिलीसीमल देते हैं तो 50 मिलीसीमल विदाउट एनी ट्रबल पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देती है और उसके कोई होम्योपैथिक एग्रेवेशन नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम इसको पकड़ ले तो हमको ये चाहिए कि पेशेंट का एक दिमाग में रहता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका एक कई पेशेंट्स का ये रहता है, अरे होम्योपैथी से ना तो पहले ना सब लोग वो बाहर निकालते, बहुत एग्रीवेशन कराते हैं और फिर वो ठीक हो जाता है। अगर वैसा नहीं हुआ ना तो ये ठीक नहीं होगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है, अगर उसको भी अगर हम लोग 50 मिलीसीमल अगर यूज करते हैं या वाटर डोज यूज करते हैं तो इससे काफी सारा चेंज
आता है और आ रहा है। जहाँ तक मैंने देखा है तब से लेके अभी अभी मोर देन 6 मंथ्स हो गए। मैं जो भी मेडिसिन देती हूँ एक तो 50 मिलीसिमल में ही दे रही हूँ, और अगर डेसिमल और सेंटेसिमल स्केल में मेरे को कोई मेडिसिन देना है जैसे 6.6, 30, 200, तो भी मैं वाटर डोज में देती हूँ, ताकि उसका जो है माइल्ड जेंटल और तरीके से वो मेडिसिन जाए और विथ मिनिमम रिपीटेशन। तो 2-3 केसेस ऐसे हैं जैसे मैं पहले भी देती थी। सिंपल एक फाइब्रॉइड का केस है, उसको पेशेंट्स को हमेशा मेनोरेजिया वगैरह रहता था, तो मैंने उसको बोला, मैं उसको पहले ट्रिलियम देती थी 30 और एसओएस देती थी वो भी, कि अगर ये हो गया ज्यादा तो ही तुमको लेना है, अदरवाइज तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल चल ही रहा था। लेकिन जैसे मैंने उसको बोला कि अगर ये तुम ले रही हो ना तो बस 2-3 गोली पानी में डाल के, आधा लीटर पानी में या छोटा वाला बॉटल पानी का डाल पे उसमें डाल के सिर्फ 5 ml तुम डेली एक दिन में 3-4 बार या 2-3 घंटे में एक बार ले लो। तो 3 ही गोली मतलब सिंगल डोज वो पानी में उसने लिया, तो उसका भी मुझे फोन आया कि मैडम इस बार तो मैंने 2-2 गोली 3 बार या 4 बार नहीं खाई, बस 3 गोली पानी में डाल के ली, तभी मेरा ब्लीडिंग जो है कंट्रोल में आ गया। तो मतलब ऐसा है कि अननेसेसरी अगर हम पिल्स भी रिपीट करते हैं तो वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मेडिसिन सही है तो मिनिमम डोज और सिंगल डोज ही वाटर में भी हम देते हैं तो भी उसका रिजल्ट अच्छा आता है। आज का लर्निंग नहीं बोल सकते, आपके साथ में लर्निंग मुझे बहुत करना है और आगे चलना है, क्योंकि माइंड मेथड के लिए मैं न्यू हूँ, ऐसे ही आप बोल सकते हो। एज स्टूडेंट हूँ माइंड मेथड के लिए। मैंने इसके पहले माइंड मेथड का ज़्यादा कुछ अटेंड किया नहीं है। लास्ट 2 मंथ्स बैक ही मैंने पुणे में HHF का ज्वाइन किया था, डॉक्टर मयूरेश कामले और दिंडे सर का। तो फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस हो गई हूँ माइंड मेथड से, तब से मैं थोड़ा थोड़ा लर्न कर रही हूँ, और आपका ग्रुप ज्वाइन करने से और भी मेरी माइंड रूब्रिक्स लर्न करने के लिए हेल्प हो जाएगी, और मैं उसमें भी थोड़ा अच्छे से कुछ कर पाऊंगी। मैडम एक ये क्वेश्चन था मेरे मन में हाँ कि नेमिनाथ हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर के साथ जाके आपने पोटेंसी और LM पोटेंसी तो देखी, हाँ इसके अलावा मटेरिया मेडिका या रिपर्टराइजेशन में भी कुछ नया सीखने को मिला क्या आपको? मटेरिया मेडिका में सर का वो है कि जो जैसे मैंने पहले बोला ना कि जो बेसिक रेमेडी का जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको एलन्स की नोट या बोरिंग्स मटेरिया मेडिका ये सब देता है, जो स्टॉलवर्ड्स के बुक्स है, अगर वो ही हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं और वही हम लोग इन बिटवीन द लाइंस पढ़ लेते हैं, तो हमको और कोई जानने की जरूरत नहीं। जैसे परसों के 2 दिन पहले के केस में एक मैडम ने डाला था कि हाथी है तो कोई पूंछ को पकड़ता है, कोई कान को पकड़ता है, कोई पैर को, और हम लोग उसी एंगल में सोचते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको रेमेडी की है तो आप उसको इलाबोरेट बाद में कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही होनी चाहिए। तो वो सर का एम्फोसिस वही रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फिजिकल असर्टेनेबल कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे वो फोकस करते हैं, जो हम लोगों ने एफोरिज्म नंबर 5 में सीखा है। एफोरिज्म नंबर 5 में आपको सबको पता ही है कि उसमें लिखा है कि असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, फिजिकल जनरल्स, पेशेंट के हैबिट्स, उसकी एज, और फिर हम लोग कंसिडर करते हैं कि उसका जो मॉरल और सोशल कैरेक्टर, उसका जो फैमिली के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये सब हम लोग कंसिडर करते हैं। इसी के ऊपर हमको जो टोटलिटी मिलती है, वही टोटलिटी हमको जो है इमेज पेशेंट की देती है, एक डिजीज पर्सन की इमेज देती है, और वही हमको लेनी चाहिए पहले तो, विदाउट हैविंग एन अनप्रिजुडाइज्ड थिंग इन आवर माइंड। तो हमको वही सिखाया है कि अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बनो, जो दिख रहा है उसको पहले समझो और फिर उस हिसाब से फॉलो करो। थैंक यू मैडम। सर के यहाँ लगभग 5 दिन या 6 दिन का 2-3 महीने में एक हाँ
हाँ, 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। और वहाँ पे मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट करने के बाद में रहने की भी व्यवस्था वही थी। और मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोगों के सर के साथ पहला राउंड होता था, मॉर्निंग राउंड, जो पूरे वार्ड से वहाँ पे फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, स्पेशल वार्ड। और हम लोग जब गए थे वहाँ पे ऑलमोस्ट 44-50 पेशेंट्स थे एडमिटेड। और फिर उसके बाद में ओपीडी सर के साथ ही सब लोगों को ओपीडी अटेंड करने होते हैं। जो भी केसेस आते हैं, एक्यूट, क्रॉनिक, कैंसर के पेशेंट, इनक्यूरेबल पेशेंट, सभी पेशेंट एक के साथ में आते हैं वहाँ पे। और पूरे दिन भर ओपीडी चालू रहती है, फ्रॉम 10 o'clock टू 5-6 o'clock तक ओपीडी चालू रहती है। बीच में सर ओपीडी के अगर कोई पेशेंट्स, फ्यू पेशेंट्स हो जाते हैं तो फिर 12 से 1 बजे तक सर इसी चीज पे लेक्चर लेते हैं। जैसे ऑर्गेनॉन के उन्होंने हमको यही पढ़ाया कि पहले अगर 6-7 एफोरिज्म्स भी अगर आप अच्छे से पढ़ लो और उसको परसीव कर लो, उसको समझ लो अच्छी तरीके से, तो आप भटकोगे नहीं किधर भी। तो ये मुझे, क्योंकि एज ए ऑर्गेनॉन पर्सन ये मुझे ज्यादा ये हुआ कि हाँ, ये मैं जो मेरा है वो मैं समझ पाऊँ अच्छे से। और बेसिक है। ऐसा होता है ना कि जैसे जूनियर डॉक्टर्स है, अभी पास आउट हो गए, तो उनको होता है जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो की नोट्स में पढ़ा है, वही देखने की वो कोशिश करते। तो वही अगर वो अच्छे से पढ़ ले, दिमाग में उसका जो पिक्चर अच्छे से बना ले, तो फिर आगे चल के अभी जैसे हम लोग ये डिस्कस करेंगे माइंड में कि नेट्रम का जो अलग ट्रेंड हमने दिखाया है, जो सिम्टम्स हम लोग ले रहे, माइंड के रूब्रिक्स हम लोग डिस्कस करके जो रेमेडी पे आते हैं, तो वो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो फिर शाम में फिर से एक बार ये दोपहर में डिस्कस होता है। फिर उसके बाद में फिर ओपीडी होती है। फिर रात का एक राउंड हो जाता है 7 o'clock तक। उसके बाद में ऐसा था कि हम लोग इतने सारे जगह से इकट्ठा हुए थे। कोई दुबई से भी आया था हमारे यहाँ पे एक जॉइन डॉक्टर, और हम लोग 10-15 जन थे। तो हम लोग 7 बजे से लेके 11 बजे तक बस वही बैठ के डिस्कस करते थे। और इतना अच्छे से डिस्कशन हमारा हो रहा था, सबके अलग अलग प्रैक्टिसेस, सबके एक्सपीरियंसेस सब लोग शेयर कर रहे थे। तो एक लर्निंग दोनों तरीके से हुआ। एक तो दूसरे डॉक्टर का भी नजरिया हमको पता चलता है, वो किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और वहां पे जो भी हमने दिन भर में देखा है, सर जो हमको सिखा रहे थे, वही भी सबके साथ मिलके फिर से एक बार उसका रिवीजन हो जाता था। और वो कल्पना है हमारी फ्रेंड, तो वो सबका रिवीजन लेती थी क्योंकि वो मॉनिटर थी ना हमारी। तो अच्छे से लर्निंग हो जाता है। आई थिंक कि सबको एक बार एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए हर एक चीज का, तो हमको पता भी चलता है कि हम कर रहे वो सही कर रहे, या हमें उसके साथ में और भी कुछ सीखना चाहिए। मैडम, कितना चेंज आया आपकी प्रैक्टिस में सर से ट्रेनिंग के मेरे बाद? प्रैक्टिस में चेंज आया मेरे प्रैक्टिस में चेंज, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं पहले से क्लासिकल मेथड फॉलो करती थी। और वही था कि मैं 50 मिलीसिमल वैसे भी पहले यूज करती थी, लेकिन बहुत कम यूज होता था मेरे से। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जैसे पल्सिटिला हो गया, पल्सिटिला, सेपिया, नेट्रम, और कुछ थूजा, सल्फर, नक्सवामिका, 15 रेमेडीज मेरे पास में। आज मेरे पास में 75 रेमेडीज है 50 मिलीसिमल के। कोई एक्यूट में भी अगर मुझे देना है तो मैं 50 मिलीसिमल देना प्रेफर करती हूँ, और वही मैं यूज कर रही हूँ। तो मुझे बहुत फास्ट और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वही हाल मेरा हुआ मैडम। पहले मैं मदर टिंचर और सब कुछ यूज करता था। अब मेरे मदर टिंचर पड़े हैं, उनके ऊपर डस्ट लग रही है, और मुझे लग रहा है मेरे डायल्यूशन जो पड़े हैं पीछे, इनके ऊपर डस्ट लगने वाली है। एलएम पोटेंसी आ गई है साथ में, अब वो एलएम पोटेंसी ज्यादा जा रही है। तो ये हाँ, तो मेरा मेरा जो होने वाला है कि डायल्यूशन के हाँ ऊपर डस्ट लगने वाली है। जी जी, और डाइल्यूशंस भी हमको कम ही लग रहे, क्योंकि जी पहले तो मेडिकेट करके ग्लोब्यूल्स और या तो पाउडर डोज बना के दिए जाते थे। अभी तो मेडिकेट किए हुआ ग्लोब्यूल से वाटर डोज देके ही देना है, तो वो भी देना नहीं पड़ता ना, मतलब एक ही हाँ, डोज में काम ही हो रहा है। बस तो वो बस रिपीटेशन भी कम हो गया, तो वो भी ज्यादा नहीं लग रहे। और एलएम पोटेंसी का तो पूछो ही मत, वो तो बहुत ही कम लगता है। एक
एक पिल मतलब एक छोटा सा पिल्यूल अभी वो सर काफी से चेंज आ मैंने गया है। सर के साथ रिक्वेस्ट की है, सर के साथ मैं प्लान बना रहा हूँ एक हाँ ऑनलाइन हाँ कोर्स हाँ। का, जिसमें 4 महीने मटेरिया मेडिका रहेगी, 4 महीने ऑर्गेनल रहेगी अरे आईपीडी, बहुत और अच्छा। 4 महीने का रिपर्टाइजेशन, और 4 महीने के लिए अलग अलग डिसीज पे जो लास्ट 4 मंथ का रहेगा उसमें अलग अलग डिसीज पे फोकस करेंगे। अच्छा और तो ये सर के साथ प्लान चल रहा है, उसका सिलेबस बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, वेरी गुड। तो ये कैसा रहेगा आपके नजरिए से? नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा ये तो सबको मतलब ऐसा है ना कि अगर ऑनलाइन सीखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने तो सोच लिया कि नहीं हमको जाना ही है और हम लोग 8 दिन मतलब अपना क्लिनिक विनिक सब बंद करके मैंने गए। भी ठान लिया, तो साल मे में भी एक बार सब तो लोग, जाना ही है। हाँ, तो सब लोगों के लिए शायद ही इतना पॉसिबल ना होता हो। तो अगर सर ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन ये है ना कि कोई भी चीज जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कशन करना अलग बात है और आंखों से देखना अलग बात है। अगर आप उसमें सामने जो चीज देखते हो ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो बहुत आता है। और वहां पे हमने कैंसर केसेस को ट्रीट होते हुए दिखा और उसको 5 डेज में जो भी चेंजेस होते हुए दिखा है। तो दैट वाज रियली मतलब नहीं, हमारे लिए वही फीस था। उसमें जो तीनों में मटेरिया मेडिका का 4 महीने का, और ऑर्गेनल का 4 माह का, रिपर्टरी का 4 माह का, और अलग अलग डिसीज का जो 4 माह का रहेगा, उसमें हमारे हाँ 3 में आपको मस्ट वहां 5 दिन का रेसिडेंशियल रहेगा। अच्छा, हाँ वो, हाँ, हाँ हाँ, जब वो मटेरियल तो सही मेडिका का है, होना रेसिडेंशियल चाहिए। रहेगा तो हाँ, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आएगा, वो चीज लर्निंग नहीं होगी। वही ना, जो लर्निंग देख वहां पे एक्सपीरियंस करके हो जाएगी, वो ज्यादा बेटर है ना। हाँ कोई और क्वेश्चन है मेंबर्स के तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि एक स्टूडेंट से उन्होंने क्या सीखा वो ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं, इसीलिए मैंने सर से मैडम से जी। क्वेश्चन किए। हाँ मैम, आप जो हाँ बताया उज्ज्वला मैम, हाँ जो 3 ग्लोबुल जो डाले हैं, 1/2 लीटर पानी में डालते हैं ना? हाँ, एक्चुअली क्या है, अगर आप वाटर डाइल्यूटेड लेते हो ना, तो मैं यूजुअली स्टैंडर्ड 100 ml का ही बॉटल यूज करती हूँ। जी जी। हाँ, 3 गोबीज इन 100 ml वाटर। हाँ, हाँ, तो पेशेंट को देते कैसे ना? 5 ml उसमें से देते रिपीट करने के लिए? वो डिजोल्व करके उसको जो हाँ है 5 ml इन हाँ, एवरी 1 or 2 hours। तो ऐसा एक ही दे डोज है, वो पानी में एक ही डोज दिया है हमने, थ्री पिल्स का, उसी पानी में डिजोल्व करके। तो वो दिन में जैसा 1 या 2 बार या 4 बार भी रिपीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन। जैसे एक्यूट है तो एवरी आवरली और हाफ आवरली भी आप रिपीट कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक केस है तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्यूआईडी रिपीट करने के लिए बोलती हूँ। मैम आप सकर्षण भी एवरी टाइम देते हैं कि बिना सकर्षण के देते हैं मैम? हेलो, मैडम हेलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, मैम सकर्षण भी देते हैं इसमें आप? जैसे वाटर क्या डोज दे बनाकर सकर्षण हम जो देते हैं वो भी हाँ देना हाँ हाँ, पड़ता होगा? सकशन विथ 10 सकशंस ना, ऑब्वियसली। हाँ एवरी हाँ, टाइम 10 ना? सकशन, वो 50 मिलीसिमल में तो सकशंस देने होते ही है। 50 ओके। मिलीसिमल का वो पैटर्न जैसे हम लोग ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, वही देना है कि वन वन 50 मिलीसिमल का 1/0 का 1 पिल इन 100 ml ऑफ वाटर, उसको 10 सकशन एवरी टाइम। यू हैव टू गिव 10 सकशंस एंड देन यू हैव टू टेक only 1 tablespoon or 5 ml and give in and add to half cup of water, और उसको लेना है। ओके। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ, और किसी कोई क्वेश्चन है? मैम प्रदीप गुप्ता सर को वहाँ पे अगर ऑफलाइन मतलब ट्रेनिंग ज्वाइन करना हो तो क्या प्रोसीजर है उसका? कुछ है प्रोसीजर आपको मैडम जब हाँ भी हो हाँ तो हाँ, मैं जब भी होगा वो यहाँ पे आपको पोस्ट हो जाएगा। वैसे हर 3-4 महीने में वहाँ पे 8 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स होता है। ओके।
अभी तो ये गर्मी का मौसम है ना, तो शायद इसमें ना हो, लेकिन जुलाई खत्म होते ही होगा शायद, मेरे को लगता है। हमारा सितंबर में था, क्योंकि अभी रिसेंटली होके गया है लास्ट मंथ, हाँ, तो अभी अभी शायद 24 से 28 एक चल रहा है अभी वहाँ, कल से अच्छा होगा। अच्छा, ओके ओके तो ओके, वो हाँ केवल 15 लोगों को लेते हैं सर, ऐसा नहीं कि ज्यादा लोगों को हाँ, नहीं, वो 15 लोग यस लेते हैं जिनको प्रॉपर अटेंशन दे सके, पूरा टाइम दे सके। और 15 हो गए फिर आप कुछ भी कर लो, सॉरी। यस ऐसा नहीं कि अब चले आओ, बिल्कुल नहीं है उधर। अच्छे से सीखो, यस अच्छा करो, बस सर का ये मोटो रहता है। यस। तो तो वही है कि मेरा ज्यादा एम्फोसिस यही था कि मेरा आपका रेमेडी सिलेक्शन करेक्ट है, पोटेंसी सिलेक्शन भी करेक्ट होना चाहिए, और प्रॉपर रिपीटेशन भी होना चाहिए। और इसके साथ में जो हमने ऑर्गेनॉन में सीखा है कि इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल इन मोस्ट हार्मलेस एंड मोस्ट रिलायबल वे, तो ये जरूरी है और उसको भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू मैडम। ठीक, यस, और थैंक यू वेरी मच। मेंबर्स को मैं और थोड़ा सा, जी मैडम जी। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मेरा केस प्रेजेंट करने का मौका दिया। और क्योंकि हमारे होम्योपैथिक में स्किन डिजीज के लिए इतना अच्छे और रिजल्ट्स है, ये तो सोरियासिस के तो है ही, लेकिन मेरे पास ल्यूकोडर्मा के भी बहुत सारे केसेस है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट है। और ल्यूकोडर्मा का केस भी अगर मैं नेक्स्ट टाइम मेरे को चांस मिलेगा मैं आपको प्रेजेंट करूंगी, कि वो मेरे पास 3-4 साल से, ऑब्वियसली एलोपैथी में तो ल्यूकोडर्मा को लिए वो इनक्योरेबल बोल देते हैं, वो पेशेंट मेरे पास 3-4 साल से है। रेमेडी सिलेक्शन भी सही है, और आगे जाके जैसे मैं दे रही हूँ, जब मैंने उस पेशेंट को 50 मिलीसीमल में शिफ्ट किया, उसमें उसके फास्ट में उसके रिजल्ट जो है बहुत फास्ट हो गए। और ल्यूकोडर्मा के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेशेंट कंसर्न होता है ज्यादा, क्योंकि वो सफेद दाग दिखता है और पब्लिकली भी उनको वो थोड़ा एम्बरेसिंग लगता है। तो ऐसा ही एक केस मेरे पास है, और वो लड़की है, अभी उसकी मैरिज के लिए उसके पेरेंट्स को बहुत एंजाइटी हो रही है कि अभी 25 साल की हो गई, अभी कितना टाइम लगेगा। तो लास्ट ईयर से मैंने, जब से सर के पास से आई तब से ही मैंने उसको 50 मिलीसीमल पे डाला है। और कंपैरेटिवली मैं अगर देखती हूँ 1-1.5 साल पहले का उसका जो कंडीशन था, तो ये 6 महीना में उससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें दिखाई दे रही है। लीजन बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट कवर हो रहे हैं उसके। थैंक यू मैम। मैम 0/1 से स्टार्ट करते हैं ना? या 0/1 से, 0/1 मैडम जरूर नेक्स्ट टाइम आपका ल्यूकोडर्मा के केस लेंगे, जी सीखेंगे। जी जी जी। और मैम जरूर मैं जरूर करिए, सब सर मेंबर्स को सही बोल रहे थे। रिमाइंड करा दूं, हाँ 26 और 27 क्विक प्रिस्क्रिप्शन एंड होम्योपैथी डॉक्टर अनु मैडम, डॉक्टर हारून सर लेके आ रहे हैं। तो सीखिए, आज सीखिए, अगले दिन क्लिनिक में यूज करिए और अच्छे रिजल्ट पाइए। तो ध्यान हेलो रखिएगा। मैम, हाँ मैडम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे 0/1 जो है, हम उसके बाद 0/2 कब शुरू करेंगे? मतलब जब हमें वो मैडम रुक वो जाएगी तो प्रोग्रेस तब? हाँ हेलो, जो हाँ, अगर आप जो है हर टाइम, एवरी टाइम अगर आप सक्शन देते हो, काउंट करना है आपको कि 10 सक्शंस आप दे रहे हो और आप कितनी बार उसको रिपीट करा रहे हो, उसके ऊपर आपका डोज कंप्लीट हो जाएगा ना 0/2 पोटेंसी शिफ्ट होने के लिए। हाँ मैम, वही थोड़ा समझाइए ना। मैम क्लियर जैसे नहीं जरा हुआ थोड़ा। उसके लिए एक अलग से लेक्चर लेना उसके पड़ेगा, लिए क्योंकि अलग से उसके लिए लेक्चर 50 होगा, मिलीसीमल ही सिखाना पड़ेगा मुझे। उसके लिए अलग से क्लास करेंगे, लेना लेक्चर पड़ेगा, होगा। क्योंकि 50 मिलीसीमल का मेथोडोलॉजी सिखाना पड़ेगा ना, कि कैसे वो जंपिंग, मतलब पोटेंसी जंप हाँ, होती है वो। हाँ, एक क्लास उसकी अलग रखेंगे, हो सकेगा तो मैडम और यस। सर को भी बोलेंगे कि साथ में सर ज्यादा मेरे से तो सॉरी, क्योंकि वहां पे तो वो रेगुलरली इतने साल से दे रहे, तो रितु मैम बहुत अच्छी तरीके से बता पाएगी। जी। थैंक यू मैडम। यस, थैंक्स टू थैंक मेंबर। यू वेरी मच। थैंक यू, ग्रेट टू मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू you, ऑल। sir. Thank you, ma'am. या थैंक यू मैडम। या Hello, dear doctors.
HSH is teaching basic mind method to all the learners since the past few months. Now, our mentors who are in practice since more than 20 years have come up with an advanced study course from July onwards. Advanced course with HSH brings you detailed study of remedies, in-depth study of rubrics and their application in cases acute as well as chronic. We also study the cross-reference of rubrics and metaphoric meanings with cases daily. If you are interested to join the advanced course study with HSH, kindly contact Dr. Ashok Avadhia. The phone number is given below. The course starts from July onwards. Thank you.